Any doubt up to this point? नो सर। सो अब वेव फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? सो ये जो a है हमारे पास, इसकी हमने वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली, ठीक है। सो साई n would be 2 by a square root sin n pi x by a, n from 1 2 3 onwards. So these are our wave functions, ठीक है बच्चे। Now let us try to plot these wave functions, so how they look like. Suppose this was our well, ठीक है, x is equal to 0, x is equal to L a, and similarly on this side I'll plot, on this side we have wave function, and on this side, right hand side, we have probability, okay. So we'll see how they look like for different values of n. So for n is equal to 1, the wave function looks like this thing. For n is equal to 1, wave function is psi 1. So what does this signify? सर आपकी आवाज कट गई थी सर। But we are plotting the wave function for different values of n. Wave function on left hand side, and on right hand side we have probability, square of wave function. ठीक है जी। For n is equal to 1, our wave function, so it's a sine wave function, so it looks like this curve, half of the sine curve. So what does this signify? This signifies that probability of finding the particle on the boundaries, that is x is equal to 0 and x is equal to a, is 0. Whereas probability of finding the particle is maximum at a by 2. So let us look at probability as well. So probability, अगर इस टाइप की कर्व का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, so it will look like this. So this is a by 2. So probability is maximum. This is psi 1 square at middle point. ठीक है? If we try to plot wave function at n is equal to 2, so then how it will look like? So again, let us draw this axis. So it will now look like this. This is for n is equal to 2, that is psi 2. And now at middle point, this point, we have 3 nodes. At boundary, x is equal to a and x is equal to 0, wave function is 0. Also at middle point, it is 0. Okay, so psi 2 is 0 at a by 2, whereas psi 1 is maximum at a by 2. What does this signify? That for n is equal to 1, that is for lower state, probability of finding the particle is maximum at central point, whereas for next excited state, that is n is equal to 2, probability of finding the particle at same point a by 2 is 0. So अब यहाँ maximum सर कहाँ हो रहा है? हाँ जी सर ये 0 कैसे हो गया? क्योंकि ये देखो, मैं ये 0 बना रहा हूँ ना, ये एक्सिस, दिस इज 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन ये प्लॉट करूं, तो अगर इस वाली कर्व का साइड 2 का मैं स्क्वायर करूं तो ये कैसे दिखेगी? पॉजिटिव वाली तो बढ़ जाएगी, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर 0 to 1 के बीच में. सो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अगेन प्रोबेबिलिटी इज लीस्ट एट a by 2. दिस इज this one is psi 2 square, ठीक है। So n is equal to x is equal to 0, x is equal to a by 2, and x is equal to a. Probability is 0 for n is equal to 2. ठीक है। So this is how it looks like. And if we keep on adding, increasing the n value, your wave function will change accordingly. So ये आपके लिए एक्सरसाइज है बच्चे, n is equal to 3 के लिए भी आप प्लॉट कर सकते हो, 4 के लिए भी, and so on. ठीक है जी। And this is the case when you have infinite potential well. इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो हमने ये ड्रॉ किया था, जैसे फॉर एग्जांपल
This is your infinite potential well. x is equal to 0, x is equal to a, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी था और यहाँ पे 0 था, ठीक है। अभी नहीं। What it means that जो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी ना दो, कि वेव फंक्शन आउटसाइड 0 है, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट पे 0 है, या x इज इक्वल टू a के राइट पे 0 है। सो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी वो बाउंड्री पे भी 0 होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी जब वेल के इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड द वेल, इफ पार्टिकल इज अप्रोचिंग, यहाँ अगर m है मास, पार्टिकल इज अप्रोचिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, उसको यहाँ भी फ्रॉम इनसाइड द वेल वेव फंक्शन शुड आल्सो बी 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट बैक होके वो यहाँ पे हिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, तो अगेन वेव फंक्शन शुड बी 0। सो वही हमने प्रूव किया है। बाहर हमने बाउंड्री कंडीशन 0 लगाई थी वेव फंक्शन की, क्योंकि इनफिनिट पोटेंशियल वेल है, जा ही नहीं सकता वहां पे, और अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी हमने बाउंड्री पे भी 0 कर दी थी। नाउ वी हैव आल्सो प्रूवन दैट कि फ्रॉम इनसाइड द वेल वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इज 0 एट द बाउंड्री। सो तीनों तरफ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बाउंड्री, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बाउंड्री एंड एट द बाउंड्री, ठीक है, वेव फंक्शन इज 0। Now what will happen if we decrease the height of this barrier? So अगर मैं एक finite potential well ले लूं, for example like this, x is equal to 0, x is equal to a. तो अगर मैं इस तरह का barrier ले लूं मुझे, जिसकी एक finite height हो, अब क्या होगा? Infinite potential well में तो आपका particle, for example यहां से अगर particle hit कर रहा है, infinite potential well होगा इस तरफ से, तो वो ट्रेवल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। बट अगर फाइनाइट बैरियर है और एनर्जी, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज v एंड दिस इज इट्स एनर्जी, सो क्लासिकली तो हम बोलते हैं कि अगर वॉल की हाइट ज्यादा है और आपकी पावर कम है जंप लगाने की, सो यू कैन नॉट क्रॉस द वॉल, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज चांस इन मिलियन और बिलियन दैट इट इज पॉसिबल दैट यू कैन ट्रेवल और पार्टिकल कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ टनलिंग, ठीक है। सो अगर ऐसा केस हो तो ये वेव फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ बैरियर? सर आपने प्रोसेस का नाम क्या बोला? टनलिंग। ये भी हम आगे करेंगे बेटा। मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ डायग्राम को। सो फाइनाइट की जगह मैं अगर इनफिनिट की जगह अगर मैं फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू लूं इस तरह से, सो दिस इज x is equal to 0, this is x is equal to a and this is potential, और यहाँ भी, ठीक है। सो ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। सो ये जो हमने पहले इसको इनफिनिट ऊपर तक ले लिया था, यहाँ पे अब फाइनाइट पोटेंशियल है, इनसाइड 0 है और आउटसाइड जो है दिस इज एक्स एक्सिस -x और ये +x है, ठीक है। सो अगर ये केस होगा तो आपका वेव फंक्शन कैसा चेंज हो जाएगा? सो अभी तक तो हमने किया था इनफिनिट के केस में वेव फंक्शन कैसे आ रहे थे आपके, n इज इक्वल टू 1 के लिए इस तरह का आ रहा था, ठीक है, psi1, psi2 इस तरह आ रहा था, है ना। सो दिस इज वेव फंक्शन n इज इक्वल टू 2 के लिए psi2। दिस इज फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, बट इफ वी reduce the potential to finite, so ये जो है हमने, this is the case of finite potential well, इस केस में आपके वेव फंक्शन कैसे चेंज हो जाएंगे ये हम देखते हैं। ये अब जो है आपके वेव फंक्शन जो है, मैं इसके पैरेलली बना देता हूँ so that you'll have better clarity। so ये है x is equal to 0, this is x is equal to a, यहाँ भी x is equal to 0 था, ये x is equal to a था। अब क्या पॉसिबिलिटी है, शार्पली डिफाइंड होंगे, x is equal to 0 और a पे वेव फंक्शन 0 हो जाएंगे या नहीं होंगे? सपोज ये रीजन 2 में आपका जो मास था पार्टिकल ऑफ मास m, अब ये अगर यहाँ पे हिट किया रीजन 1 की बाउंड्री पे, 1 और 2 की बाउंड्री पे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एनी आइडिया बच्चे? अगर इनफिनिट पोटेंशियल वेल था तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, अब क्या होगा? नाउ देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि वो पार्टिकल जो मास m है वो इस
इस थोड़े से रीजन में, सराउंडिंग रीजन में, यहाँ या इस तरफ, इतने रीजन में वो क्रॉस कर जाए ड्यू टू टनलिंग। ठीक है, तो टनलिंग की वजह से वो एग्जैक्टली इस x इक्वल टू 0 पे आपका वेव फंक्शन 0 नहीं देगा, या इसके थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ वो 0 नहीं देगा, इट इज नॉन जीरो। सो आपका जो ये वेव फंक्शन है ये लीक हो जाएगा ऑन बोथ साइड। सो आपको इस तरह का दिखेगा ये। ठीक है, इस तरह से। So there is certain probability, ये जो shaded region है, certain probability that particle can exist on left and right hand side of the boundaries. यहाँ पे आपका ये shaded region था ही नहीं, यहाँ पे 0 था। ठीक है, wave function is 0 at this side, but if we are dealing with finite potential well, there is certain probability कि particle जो है इस side पे exist करता हो। अगर मैं side 2 plot करके दिखाऊं आपको, so side 2 आपका इस तरह से होगा। ठीक है, सो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, ये दोनों सिमेट्रिकल है। दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1 psi 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2 psi 2 फॉर फाइनाइट पोटेंशियल वेल। आपको फाइनाइट पोटेंशियल वेल की डेरिवेशन नहीं करनी है मुझे, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये वेव फंक्शन बिहेव किस तरह करेंगे इफ वी मूव ऑन टू इनफाइनाइट टू फाइनाइट। ठीक है जी, मुझे इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सर वो टनलिंग का थोड़ा बता दो। टनलिंग का बजे मैं अभी आऊंगा, टनलिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बजे? हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की हमने प्रॉब्लम उठाई थी, तो अप्लाई यहां करना था। ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, जितनी भी रेंज है हमारे पास 0 to a, तो वो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया। ऑन सॉल्विंग एंड अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन, वी फाउंड दैट वेव फंक्शन जो है वो हमारा k की वैल्यू n पाई बाय a आ गई। ठीक है, सो यहां से हमने एनर्जी की वैल्यू निकाल ली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया इन ऑर्डर टू डिनोट कि किस लेवल की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि एनर्जी इक्वली स्पेस नहीं है, उसके बाद वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। तो वेव फंक्शन b 0 आ गया था, a हमें मालूम नहीं है, सो a हमने फाइंड किया बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो तो वो 1 के बराबर आएगी। प्रोबेबिलिटी क्या है? साई स्क्वायर साई n स्क्वायर विच इज साई स्टार साई। सो वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैंने निकाल लिया, वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई करने पे बाय यूजिंग दिस इंटीग्रल, ये हमने डायरेक्टली यूज किए वैल्यू, वी फाइंड दैट a इज इक्वल टू 2 बाय a स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई जब हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस इज अवर वेव फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स पार्टिकल इनसाइड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो जब हमने वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी प्लॉट करके देखी तो हमें इस तरह से कर्व्स मिली। ठीक है, सो डिस्क्रीट एनर्जी है और हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जितना क्वांटम नंबर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 लेवल के लिए सेंट्रल में a/2 में, मतलब पार्टिकल सेंट्रल पॉइंट पे ज्यादा देर रहेगा एज कंपेयर टू द कॉर्नर्स, and this probability changes as you are moving on to higher energy levels. For example, n is equal to 2, n is equal to 3, and so on. Now, if we reduce the height of the potential, that is infinity की जगह उसको finite कर दूं मैं इस तरह से, so हमारे जो wave function है वो exactly boundary पे zero नहीं हो जाएंगे, they will leak out on left hand and right hand side like this. ठीक है जी, so ये आपका आर्टिकल था बजे application of Schrodinger time independent Schrodinger wave equation to find infinite potential well, and what are the consequences if we are reducing the infinite potential well to finite potential well. ठीक है, तो वेव फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज टनलिंग इफेक्ट, या इसको सिंपली टनल इफेक्ट भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को टनलिंग बोलते हैं। ठीक है जी, सो ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मुझे कि है क्या। फॉर एग्जांपल, you have certain energy
this particle, for example, this particle mass m has certain energy E, और ये जो बैरियर की हाइट है ये है V, such that V is greater than E. ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है. सो अब क्या पॉसिबिलिटी है बच्चे कि ये जो पार्टिकल ऑफ मास m है जिसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दी बैरियर हाइट, ये रीजन 3 में जा सकता है? इज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी? नो सर. सो क्लासिकली देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो पास कर जाए इतनी बैरियर. इट मींस फॉर एग्जांपल 10 फीट की एक वॉल है बट आप जंप लगा सकते हो सिर्फ 6 फीट या 7 फीट का, ठीक है? सो यू कैन नेवर क्रॉस दिस वॉल according to classical mechanics. But quantum mechanics says that there is a chance, 1 in a million or billion, that even if this is the case, particle can cross and it exists on region 3 as well. This process is called tunneling. ठीक है? क्लियर हुआ बच्चे? टनल इफेक्ट क्लियर हुआ? सर फिर वो सेंटर से जाएगा पार्टिकल. हाँ, सेंटर. ये फॉर एग्जांपल मैं फिर से रिपीट करता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेव, ठीक है? पार्टिकल, ये वेव इसको हिट कर रही है, इसकी एनर्जी है E, जबकि ये है बैरियर V. सो अब क्या होगा, जैसे आपने स्किन डेप्थ में किया था ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, बट विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड आपका जो वेव फंक्शन है वो रीजन 3 में आ जाएगा. बाय पेनिट्रेटिंग दिस वॉल, पेनिट्रेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो से कि अगर 10 फीट की वॉल है और 6 फीट की एनर्जी है, क्लासिकली तो आप नहीं कर सकते, बट क्वांटम मैकेनिकली इफ यू कीप ऑन हिटिंग और स्ट्राइकिंग दिस वॉल विद योर हेड, so there is chance in 1 in a million or billion that it is possible that you can penetrate through the wall, ठीक है? अगर बच गए तो. So but this is not true for macroscopic bodies. Microscopic bodies के लिए ही true है, ठीक है? So अगर आप दीवार में सिर मारोगे तो you cannot penetrate through the wall. But on the contrary, if you are dealing with atomic scale or nuclear scale, अगर आप एटम की बात कर रहे हो, एटम जिसकी रेंज है 10⁻10 मीटर्स साइज में, और न्यूक्लियर फिनोमेना जिसकी रेंज है 10⁻15 मीटर्स. सो अगर इतने लेवल के पार्टिकल का साइज होगा, सो देयर इज चांस दैट इट कैन कम आउट ऑफ द बैरियर. तो कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे इसकी? कोई प्रोसेस आपके माइंड में आती हो जो टनल इफेक्ट यूज करती हो? एनी आइडिया? अल्फा डिके सुना है बच्चे आपने? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल सर 2He4. 2He4 तो है. So nucleus of 2He4 is alpha particle. Electron emit हो जाता है ना? Suppose this is a radioactive nuclei. Radioactive nuclei क्या होता है? What is radioactive nuclei? सर जो डिके होता रहता है. जो डिके होता रहता है ग्राउंड स्टेट में भी, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, ठीक है? अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव. फॉर एग्जांपल यूरेनियम है हमारे पास, ठीक है? सो दीज पार्टिकल्स अल्फा, बीटा या प्रोटॉन, these are used in chemotherapy as well. तो ये जो रेडिएशन निकल रही है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से, ठीक है? अच्छा, इसमें से रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियाई है, इसकी जो वॉल है, इसकी जो बाउंड्री है, मतलब अगर इस न्यूक्लियस में से अगर किसी चीज को बाहर निकलना है तो उसको 25 MeV 25 MeV की वॉल को क्रॉस करना होगा. इतना बैरियर है, इतनी एनर्जी है अगर आपके पास, देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस न्यूक्लियस. बट अल्फा पार्टिकल जो निकलता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? एनी आइडिया? 6 या 7 MeV की. इतना अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वाला इतनी एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल इतनी बड़ी वॉल को क्रॉस कर जाता है. दिस इज पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ टनलिंग. सो इसमें 10⁻38 स्ट्राइक करेगा, तब उसमें से एक चांस है
कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो बाहर आ जाए। सो इतनी लो प्रोबेबिलिटी है 1/10⁻38। ठीक है। सो सेमीकंडक्टर डायोड्स में टनलिंग फिनोमेना यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टनल करते हैं। ठीक है। सर ये हमें ये समझने के लिए खाली, या फिर ये हमें याद भी करना है? बच्चे ये सिर्फ आपको समझने के लिए ओके मैं सर। नेचुरली ये नेचुरल प्रोसेस है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल निकलता है, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी तो सिर्फ इतनी ही है, और वो वॉल क्रॉस करता है 25 MeV की। सो ये जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है, ऑब्वियसली इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो नेचुरल प्रोसेस के साथ इसको असिमुलेट कर रहे हैं कि नेचर में भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलना है, अगर उसको एक्सप्लेन करना है आपको, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ टनलिंग प्रोसेस। ठीक है। सो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो इसकी डेरिवेशन भी नहीं करनी है। सपोज मैं वेव नंबर लिख देता हूँ सीधा, आपको टनलिंग का फॉर्मूला है, ट्यूब शीट में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है। इफ दिस इज K1 is the wave number in region 1, K2 is the wave number in region 2, और K3 which is equal to K1, क्योंकि दोनों तरफ 1 और 3 रीजन तो सेम ही है। ठीक है, एक आपने ये बाउंड्री खड़ी की है ना, सिर्फ रीजन 1 एंड रीजन 3 तो सेम ही है। सो रीजन 2 का वेव नंबर है K2। ठीक है। सो जब आप तीनों रीजन पे श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करोगे और सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, you can easily find transmission probability, or simply T is equal to e raised to power minus 2k2 L if this is x is equal to 0 to x is equal to L। अगर A यूज कर रहे हो तो T is equal to e raised to power minus 2k2 into A या L, this is width of the barrier। ठीक है। K2 क्या है? K2 is wave number of region 2, जो आपने बैरियर पोज किया उसके आगे। और K2 की वैल्यू क्या है? जनरली जो हमने K लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी? 2me/h क्रॉस स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ K2 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी E है और वो बैरियर फेस कर रहा है V। सो ये जो टोटल एनर्जी है, नेट एनर्जी है, ये डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे K2 की वैल्यू आएगी 2mv-e, जितनी बच गई एनर्जी, ओवर h क्रॉस स्क्वायर रूट। ठीक है। सो ये K2 की वैल्यू ये है। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सो ये आपका टनलिंग का फॉर्मूला है जो ट्यूब शीट में आपकी यूज होगा, कोई भी, चाहे L यूज करो चाहे A यूज करो, एंड वैल्यू ऑफ K2 इज दिस मच। सर ये फॉर्मूले से सिग्निफाई क्या हो रहा है सर? ये मुझे टी आप का निकाल रहे हो, T इज टनलिंग प्रोबेबिलिटी। ये जो यहाँ मैंने अभी आपको बताया ना कि ये 10⁻38 बार स्ट्राइक करेगा तो एक चांस है कि वो बाहर आ जाए। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो T गिव्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग, कि कितनी बार स्ट्राइक करे तो एक आपका केस हो जाए कि बाहर आ जाए। Here T is tunneling or transmission probability। तो बच्चे अगर आपकी यहां से वेव अगर स्ट्राइक कर रही है, सपोज दिस इज द वेव फंक्शन psi1, ठीक है, इन रीजन 1, मैं इस तरह लिख देता हूं, यहां से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। सो इट इज psi1 विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे मैं प्लस साइन लिख देता हूँ, दिस सिग्निफाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस सिग्निफाई बैकवर्ड डायरेक्शन। सो देयर इज चांस कि यहाँ पे psi3 एग्जिस्ट करता हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है। सो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्रांसमिशन की।
ठीक है, सो यहाँ जो कंपोनेंट है उसको अगर यहाँ वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर दें जितना इंसिडेंट हुआ, तो आपके पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमने निकाली कैसे। यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सो यहां से बचे इस फॉर्मूले से एक तो हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कुछ कि क्लासिकली व्हेन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन बैरियर हाइट, पार्टिकल मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बैक। सो क्लासिकल मैकेनिक्स को कहती है कि टनलिंग पॉसिबल नहीं है। वेयर एज इन क्वांटम मैकेनिक्स, डी ब्रोगली वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल आर पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। सो वेव नेचर की वजह से ये ट्रांसमिट भी कर सकती है, देयर इज चांस। नेक्स्ट इज इफ द बैरियर इज इनफाइनाइटली थिक, तो जो आपने 0 to a या 0 to l थिकनेस ली है, तो उस केस में डिस्कस करते हैं। इफ द बैरियर इज इनफाइनाइटली थिक, देन ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी विल बी 0। क्लियर है बच्चे कि अगर आपने बहुत ज्यादा थिक बैरियर ले लिया, इनफाइनाइटली थिक, तब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो ही जाएगी। ठीक है, बट इफ इट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, सो अगर आपने ये जो थिकनेस है ये वाली, ये कुछ फाइनाइट रखी हुई है, then there is finite probability, however small, for particle to tunnel from region 2 to region 3. So यहां से यहां जाने में finite probability, पर जैसे ही आप ये width, ये जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं इतनी इसकी बैरियर विड्थ रख देता हूँ, सो आपकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, और फाइनली अगर आपने इनफाइनाइट कर दिया थिकनेस को, तो वो 0 हो जाएगी अल्टीमेटली। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल डज नॉट गो ओवर द टॉप ऑफ द बैरियर, क्योंकि एनर्जी उसकी कम है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर से नहीं जा सकता, वी पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर सकता। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्रॉस नहीं कर सकता तो पेनिट्रेट करेगा, बट टनल्स थ्रू द बैरियर। एंड लास्ट वन इज द हायर द बैरियर एंड वाइडर इट इज। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है मुझे कई बार कि टनलिंग के ऊपर कि बैरियर विड्थ या हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो यहां से है हायर द बैरियर, जितनी हाइट ज्यादा होगी, एंड वाइडर इट इज, और जितना इसकी विड्थ ज्यादा होगी, उस केस में प्रोबेबिलिटी आपकी टनलिंग की लेस होगी। लेस विल बी द चांस दैट पार्टिकल कैन कम आउट ऑफ द बैरियर। ठीक है, सो आपकी पेनिट्रेबिलिटी या टनलिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब आपका बैरियर लोअर होगा और इसकी विड्थ कम होगी। ठीक है, सो टनलिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 over, फॉर एग्जांपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ बैरियर के लिए, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द बैरियर। सो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हाइट बढ़ गई तो भी टनलिंग डाउन आ जाएगी, विड्थ बढ़ गई बैरियर की तब भी टनलिंग डाउन आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये आप फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हो। फॉर्मूला है आपका T is equal to e raised to power minus 2k2l या a, where k2 is equal to 2m v minus e by h cross square. So यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि v अगर या एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ये जो a है दिस इज विड्थ। ठीक है, x is equal to 0 to a, दिस इज विड्थ। सो अगर ये विड्थ a आपने कम या ज्यादा किया तो टनलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ आपने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल माइनस पावर में है, विड्थ आपने बढ़ाई तो 1 over एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, तो टनलिंग डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। सो बच्चे इस यूनिट में क्वांटम मैकेनिक्स में हमने स्टार्ट किया था क्लासिकल मैकेनिक्स से कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या चीज फेवरेबल थी और वो कहाँ फेल कर गई। सो डीमेरिट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कौन कौन से फिनोमेना उससे एक्सप्लेन नहीं हुए। देन कम्स इनटू पिक्चर द कांसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो प्लैंक से स्टार्ट हुआ कि वेव हैज पार्टिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद डी ब्रोगली ने बोला कि ड्यूल नेचर है, पार्टिकल हैज वेव नेचर एज वेल, मैटर वेव जिसको बोला। उसके बाद हमने स्टडी किया कि वेव फंक्शन क्या चीज होती है ना। सो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी पार्टिकल की, थ्रू वेव फंक्शन की हमने निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमने डिराइव की श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट, और उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर लिया, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट अलग से कर लिया, टाइम डिपेंडेंट पार्ट अलग से कर लिया। देन एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट
ऑन टू फाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया, वहां से हमने पार्टिकल की बिहेवियर जानने के लिए हमें क्या क्या निकालने की जरूरत थी। सो श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें एनर्जी चाहिए, वो हमने निकाल ली। वेव फंक्शन चाहिए कि पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए उसकी एग्जिस्ट होने की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो वो हमने निकाल लिया। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज भी कर लिया, और हमने पर्टिकुलर केस देखा कि अगर हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को फाइनाइट कर दें तो क्या प्रोसेस होगी। एंड देन फाइनली इज वी हैव टनलिंग इफेक्ट। ठीक है जी, सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर क्वांटम मैकेनिक्स।